अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। टुडे आई हैव कम अप विद सम एमसीक्यूज ऑन इंडियन पिनल कोड which are related to chapters 1st, 2nd and 3rd which I have discussed with you, and the MCQs are covering the sections from section 1 to 75. So let us begin. Our today's first MCQ is: the word illegal is applicable to everything. A option is an offense, B option is prohibited by law, C option furnishes ground for civil action, and D option all of the above. I have discussed with you that section 43 deals with defines the term illegal, and at the time I had discussed with you that illegal means that, an act which is an offense, an act which is prohibited by law, an act which furnishes a ground for civil action. So here all these three options is satisfying the term illegal. So the correct option is all of the above. D option, option D. Now coming to question number 2, which of the following is correctly matched? Option A, counterfeit is in section 28. Option B, valuable security is in section 29. Option C, document is in section 30. And D option, omission is in section 31. Coming to D option, omission, that is in section 31. It is a wrong option. Omission is defined in section 33. So this option is incorrect match. C option, document, is in section 30. It is also incorrect match. Document is defined in section 29, not in section 30. Now coming to B option, valuable security in section 29. No, it is incorrect match. Valuable security is defined in section 30, not in section 29. And now coming to counterfeit. Counterfeit is defined in section 28. It is a correct match. So correct answer is option A. Now coming to question number 3. Local law mentioned under section 42 of Indian Penal Code means a law applicable to. Local law का क्या मतलब है? That local law which is defined in section 42 का क्या मतलब है? Local law का क्या मतलब है? I have told you local law means a law which is applicable to a particular part of India. So the correct option is option B. Now coming to question number 4, good faith within the meaning of IPC means. IPC में good faith का क्या मतलब है? I have told you good faith is defined in section 52, and it is the good faith की जो definition है that is negative one provided in section 52, और वहाँ पे बोला गया है an act which is done with due care and attention उसको good faith बोलेंगे, और act which is not done with due care and attention उसको good faith नहीं बोलेंगे. So here the option is option A. Now coming to question number 5, who prepared the first draft of IPC? IPC का first draft किसने बनाया है, किसने prepare किया है? I have not discussed this thing with you. You must be knowing that before the IPC came into force, here we were having the Mohammedan criminal law. ठीक है, तो Mohammedan criminal law was introduced in our country, and Indian courts applied Mohammedan criminal law in administration of justice. This Mohammedan law was based on Quran and Hadith. ठीक है, फिर आईपीसी कैसे आ गया, किसने ड्राफ्ट किया? फिर बिकॉज ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ऑल इंडिया लेजिस्लेचर वाज क्रिएटेड. ठीक है, द ऑफिस ऑफ लॉ मेंबर इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वाज क्रिएटेड, और इस चार्टर की वजह से जब लेजिस्लेचर भी बन गया तो ऑफिस ऑफ लॉ मेंबर वाज आल्सो क्रिएटेड इन द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल. ठीक है, तो उसी में एक प्रोविजन बनाया गया था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ लॉ कमीशन. तो फिर लॉ कमीशन पहले अपॉइंट हो गई इन 1834. इसका चेयरमैन लॉर्ड मोकले था, वो लॉ मेंबर भी था, वो लॉ मेंबर ही था और वो उसका चेयरमैन था. बाकी जो इसके मेंबर्स थे वो थे सारोश्री, मैकलॉयड, एंडरसन एंड मिलेट वर अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन, लॉ कमीशन के. आप ये बात भी याद रखें, लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1834. इसके चेयरमैन लॉर्ड मोकले थे. ठीक है, फिर द कमीशन प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट इंडियन पिनल कोड फॉर इंडिया विच वाज सबमिटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन अक्टूबर 14, 1837. फिर इस लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट बनाया इंडियन पिनल कोड का. तो फिर उन्होंने ये ड्राफ्ट सबमिट किया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उस टाइम के. कब सबमिट किया? ऑन अक्टूबर 14, 1837.
फिर इसको रिवाइज किया गया सर बर्निस पीकॉक ने, सर JW कोलविल ने एंड सेवरल अदर्स ने इसको फिर रिवाइज किया। तो फाइनली इसका जो ये ड्राफ्ट था इंडियन पिनल कोड का, ये कंप्लीट हो गया इन 1850 और इट वाज प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1856। फिर ये बिल थी इंडियन पिनल कोड की, ये फिर पास हो गई कब? अक्टूबर 6 1860 को, और गवर्नर जनरल ने इसको उसी दिन असेंट किया, उसी दिन मंजूर भी किया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हेन द बिल ऑफ गवर्नर व्हेन द बिल ऑफ द इंडियन पिनल कोड वाज असेंटेड बाय द गवर्नर जनरल, तो उसको अक्टूबर 6 1860 में गवर्नर जनरल ने इसको साइन कर दिया, इसको मंजूर कर दिया। और फिर फाइनली इंडियन पिनल कोड केम इनटू ऑपरेशन ऑन 1 जनवरी 1862। ये सारे डेट ऑफ याद रखना, ठीक है। फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो अपॉइंट हो गई 1834। इसके चेयरमैन थे लॉर्ड मोकली, बाकी इसके मेंबर्स भी थे। तो उन्होंने पहले ड्राफ्ट इसका बनाया इंडियन पिनल कोड का, फिर उन्होंने ये सबमिट किया गवर्नर जनरल को। कब सबमिट किया? अक्टूबर 14 1837। फिर इसको रिवाइज किया सर बर्निस पीकॉक ने, सर JW कोलविल ने, सेवरल अदर्स, और इसका ड्राफ्ट जो था वो कंप्लीट हो गया इन 1850 में, और ये प्रेजेंट हो गया फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल को इन 1856। फिर बिल वाज पास्ड ऑन अक्टूबर 6 1860 एंड इट रिसीव्ड द असेंट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑन द सेम डेट एंड thus became the Indian Penal Code 1860. But the code came into operation on 1 January 1862. तो होप कि आपने ये याद रखा होगा। तो इसका ऑप्शन हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ IPC, इसका आएगा मोकले, लॉर्ड मोकले। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, where no sum is expressed to which a fine may extend the amount of fine to which the offender is liable to pay। इसको क्या आएगा liable to pay? इसको आएगा, क्योंकि आई हैव डिस्कस्ड विथ यू इन सेक्शन 23 देयर इज प्रोवाइडेड द अमाउंट ऑफ फाइन क्या होना चाहिए। वहाँ पे ये ए ऑप्शन अनलिमिटेड, बी ऑप्शन नॉट एक्सीडिंग ₹50,000, सी ऑप्शन नॉट एक्सीडिंग ₹10 लाख एंड डी ऑप्शन अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इन सेक्शन 63 के अनलिमिटेड होना चाहिए, बट जहाँ पे अमाउंट दिया ही नहीं गया हो ऑफेंस में पुनिशमेंट के तौर पे कि कितना अमाउंट देना है, तो वहाँ पे बताया गया है इन सेक्शन 63 में कि अनलिमिटेड कर सकता है कोर्ट फाइन उसको, बट दैट शुड नॉट बी excessive, though option D is the correct option. Now coming to question number 7, the term he used under IPC relate to a person who is, IPC में जो he यूज किया गया है रिलेटेड टू पर्सन, वो किसके लिए, वो मेल के लिए है या फीमेल के, या दोनों के लिए, किसके लिए, ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जहाँ पे जेंडर वर्ड डिफाइन किया गया है। तो वहाँ पे बोला गया है कि इट अप्लाइज टू बोथ मेल और फीमेल। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर IPC विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस मेक्स प्रोविजन ऑफ सॉल्टरी कन्फाइनमेंट। सॉल्टरी कन्फाइनमेंट किस में डिफाइन किया गया है? दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 73 में, नॉट इन सेक्शन 71। 71 में नहीं दिया गया है। 71 में लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंस बताया गया है। सेक्शन 72 में बताया गया पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इज डाउटफुल ऑफ विच। और सेक्शन 74 में बताया गया है, सेक्शन 74 में बताया गया लिमिट ऑफ सॉल्टरी कन्फाइनमेंट। तो लेकिन सॉल्टरी कन्फाइनमेंट किस में डिफाइन किया गया? वो सेक्शन 73 में डिफाइन किया गया है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, डिसऑनेस्टली हैज बीन डिफाइंड इन द IPC एज डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू कॉज wrongful gain to one person, wrongful gain to another person. I have not discussed these definitions with you, but हेयर आई विल टेल यू डिसऑनेस्टली किस में डिफाइन किया गया है। डिसऑनेस्टली जो है ये डिफाइन किया गया है, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 24। सो
करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ये भी मैं बोल दूंगी कि सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया है रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली, और सेक्शन 25 में डिफाइन किया है फ्रॉडुलेंटली। डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन है दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 24। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ रिलेटेड टू थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी है? एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ, ये थ्योरी है। आपको मैंने ये चीज़ भी नहीं बोली है क्योंकि इससे ज़्यादा थ्योरीज के रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आएगा। आई हैव नॉट टोल्ड यू, आई विल डिस्कस दिस थिंग विथ यू। देयर आर बेसिकली मेनी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, यानी कि पनिशमेंट कैसे देनी चाहिए, पहले मतलब कैसे दे दी जाती थी, इसके लिए थ्योरीज है। एक थ्योरी है डेटरन थ्योरी। डेटरन थ्योरी जो है दैट इज़ टाइप ऑफ वो थ्योरी बोलती हैं कि पनिशमेंट ऐसे दीजिए आप दैट शुड रिमेन अ वार्निंग टू अदर्स, ठीक है। और मेन ऑब्जेक्ट जो है डेटरन थ्योरी का पनिशमेंट का, इसके मुताबिक पनिशमेंट का मतलब यही होता है टू डेटर या प्रिवेंट क्राइम्स, ठीक है। इट सर्व्स एज अ वार्निंग टू द ऑफेंडर नॉट टू रिपीट द क्राइम इन फ्यूचर। ये एक थ्योरी है, इसको बोलते हैं डेटरन थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो है इसकी दैट इज रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। क्या है? रेट्रिब्यूटिव। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी क्या क्या मतलब है? रेट्रिब्यूट जो सो फार एज दिस वर्ड इम्प्लाइज रेट्रिब्यूट, रेट्रिब्यूट का क्या मतलब होता है? टू गिव इन रिटर्न। ये थ्योरी इज बेस्ड, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ टेकिंग रिवेंज अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, ठीक है। इसका मतलब इस थ्योरी का मतलब यह है कि पनिशमेंट ऐसे दे दीजिए आप कि हम अपना बदला ले लें। उसने हमारी उंगली तोड़ी, हम भी उसकी उंगली तोड़ी, मतलब दिस इज द इस थ्योरी का यही मतलब होता है। द विक्टिम कुड इन्फ्लिक्ट द सेम इंजरी टू देयर रॉन्ग डूअर, दैट इज टू से एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, अ लिम्ब फॉर अ लिम्ब, ठीक है। इसको मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ में इसको किसास बोलते हैं, इस टाइप ऑफ पनिशमेंट को, इसको रेट्रिब्यूटिव थ्योरी बोलते हैं। थर्ड थ्योरी जो है दैट इज प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी क्या है? इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिसेबलमेंट भी, ठीक है। ये दिस थ्योरी क्या, इसका क्या मतलब है? दिस थ्योरी सेज टू प्रिवेंट द क्रिमिनल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम बाय कीपिंग हिम अवे सो दैट द सोसाइटी इज फ्री फ्रॉम द इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम। यानी कि ये थ्योरी बोलती है कि हमें क्राइम को होने से बचाना है, क्राइम होने से बचाना है। हमें बंदे को, जिस बंदे ने क्राइम किया है, इसको कहीं दूर ले जाओ, इसको कहीं पे बंद कर दो ताकि बाकी सोसाइटी इसके क्राइम करने से बच जाए। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिपीटेशन ऑफ क्राइम द ऑफेंडर्स ऑफ पनिश्ड विद डेथ। तो फिर भी उस वहाँ पे ऑफेंडर्स को, सोसाइटी को बचाने के लिए ऑफेंडर को वहाँ पे मौत दे दी जाती थी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे दी जाए, ट्रांसपोर्टेशन, उसको दूर कहीं पे भेजा जाता था। इट इज़ प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी के बोलती हैं कि पनिशमेंट कैसे देनी चाहिए। फोर्थ है रिफॉर्मेटरी थ्योरी। रिफॉर्मेटरी का मतलब है, सो फार एज दिस वर्ड इम्प्लाइज रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब है कि क्रिमिनल को रिफॉर्म करना, इसको चेंज करना। ये बोलते हैं कि नो वन इज़ अ क्रिमिनल बाय बर्थ, अ क्रिमिनल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इस सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। सो हमें इसको रिफॉर्म करना चाहिए, इसको थोड़ी सी ये करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए, इसको अच्छे एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, तब जाके वो चेंज हो जाएगा। ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। पांचवी थ्योरी है एक्सपिएटरी थ्योरी। एक्सपिएटरी थ्योरी क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉरल्स। इट सेज टू, मतलब इसके जो मेन सपोर्टर थे वो हीगल एंड कोहलर थे, वो इसके मेन सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी थे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एक्सपिएशन और रिपेंटेंस बाय ऑफेंडर इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट। यानी कि अगर वो खुद ही शर्मिंदा है ऑफेंडर, तो इट इज़ अ punishment, is a type of punishment। ये expert, though we have discussed 5 types of theories related to punishments, that is deterrent theory, second one is retributive theory, third one is preventive theory, fourth one is reformative theory, and fifth one is expiatory theory। So here question is, हमारा question यहाँ पे ये है, an eye for an eye and a tooth for a tooth related to which theory है? कौन सी theory है? reformative तो नहीं है, deterrent भी नहीं है, retributive है, preventive नहीं है। So करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रेट्रिब्यूटिव। यानी कि ये बदला लेने की थ्योरी है। पनिशमेंट यही बोल, इस थ्योरी के मुताबिक पनिशमेंट उसको भी मिलनी चाहिए जिसने कुछ क्राइम किया किसी के साथ, तो उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है जनरल एक्सेप्शंस आर कंटेन्ड इन। जनरल एक्सेप्शंस किस में
प्रोवाइड किए गए हैं. आई हैव डिस्कस्ड विथ यू इन लेक्चर 1 when I have given you the brief overview of the Indian Penal Code. At the time I have discussed with you some chapters कि कौन सा चैप्टर किसके साथ डील करता है. Here I will again give you some brief introduction. Chapter 3 जो है that is dealing with that deals with punishment. Chapter 4 जो है that deals with general exceptions. So correct option is option B. B option. Chapter 4 deals with general exceptions, and chapter 5th of the Indian Penal Code that deals with abatement, and chapter 6th of the Indian Penal Code that deals with offenses against a state. Here general exceptions are falling in chapter 4th of the Indian Penal Code. Now coming to question number 11, who among the following is exempt from the application of IPC? किन को IPC के तहत जो exempt है उनको IPC के में उनको मुजरिम करार नहीं दिया जाएगा. तो दैट इज़ नंबर 1 ऑप्शन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नंबर 2 ऑप्शन इज डिप्लोमेट्स, नंबर 3 ऑप्शन इज एलियन एनिमीज, नंबर 4 ऑप्शन इज all of the above. I have discussed with you in perhaps chapter lecture 3rd when I was discussing with you the jurisdiction. तो वहाँ पे मैंने आपको बोला कि पुनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया वो सेक्शन 2 पे है. तो वहाँ सेक्शन 2 में है कि अगर कोई बंदा इंडिया में कोई जुर्म करेगा तो उसको इंडिया में सज़ा मिलेगी. लेकिन वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन बंदों को इम्यूनिटी है. दे कांट बी प्रोसिक्यूटेड while they were in India, if they have committed any crime in India, if they are running any office या during the term of their office they can't be prosecuted. तो इनमें से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिप्लोमेट्स, एलियन एनमी, ऑल ऑफ द अबव इसको ऑप्शन आएगा. ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी इसको ऑप्शन आएगा. दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इनको प्रोसिक्यूट नहीं एग्जेम्प्ट है फ्रॉम द application of IPC. Now coming to question number 12, the draft of IPC was prepared by, ये अभी मैंने आपको बोला कि it was prepared by the first law commission. लॉर्ड मॉकली इसका चेयरमैन था तो उन्होंने ही इसको प्रिपेयर किया. क्वेश्चन नंबर 13, एन इंडियन सिटीजन मर्डर्स फॉरेन सिटीजन इन पेरिस एंड absconded. He is found by Indian police in Mumbai. He with previous sanction of central government can be. एक इंडियन सिटीज़न है, इंडिया का शहरी है वो, उसने पेरिस में एक फ्रांसी को मारा, फ्रेंच सिटीज़न को उसने मारा, फिर वो गायब हो गया इंडियन सिटीज़न. ही इज़ फाउंड बाय इंडियन पुलिस इन मुंबई. इंडिया की पुलिस ने उसको मुंबई में देखा. ही विद प्रीवियस सैंक्शन, वो उसको कहाँ पे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, कहाँ पे उसको अभी कहाँ पे इसको प्रोसिक्यूट किया गया. ए ऑप्शन, प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया एट द प्लेस फिक्स्ड बाय फॉरेन मिनिस्ट्री. फॉरेन मिनिस्ट्री जो प्लेस करेगी तो जो फिक्स करेगी प्लेस तो उसको इंडिया में वहीं पे प्रोसिक्यूट किया जाएगा. बी ऑप्शन, प्रोसिक्यूटेड इन नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में इसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा. नंबर सी, प्रोसिक्यूटेड इन मुंबई ओनली. नंबर ऑप्शन डी, प्रोसिक्यूटेड एट एनी प्लेस एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट. एंड ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव. मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है when I was discussing with you the jurisdiction. So at the time I have discussed with you that section 2 deals with the personal jurisdiction and intra jurisdiction, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन. सेक्शन 2 में मैंने आपको बोला है कि सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में बताया गया है कि एवरी पर्सन इरेस्पेक्ट ऑफ हिज रैंक, नेशनलिटी, कास्ट और क्रीड शैल बी लायबल टू पनिशमेंट फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया. लेकिन सेक्शन 2 बोलता है कि अगर इंडिया में ऑफेंस किया गया हो तब जाके इंडियन सिटीज़न को वहाँ पे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, चाहे इंडिया सिटीज़न ने किया हो या फॉरेनर ने किया हो, लेकिन ऑफेंस इंडिया में ही हुआ होना चाहिए. लेकिन सेक्शन 3 में मैंने आपको बोला है, सेक्शन 3 एंड 4 दैट डील्स विद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन. और वहाँ पे मैंने बोला है आपको कि से दैट एन इंडियन सिटीज़न, ये इंडियन सिटीज़न के बारे में बोलता है, मे बी प्रोसिक्यूटेड या पनिश्ड इन इंडिया फॉर कमिटिंग एनी एक्ट विच इज़ एन ऑफेंस अंडर इंडियन एनैक्टमेंट. अगर उसने ऑफेंस किया है मे बी प्रोसिक्यूट इन इंडिया, उसको इंडिया, अगर इंडियन सिटीज़न ने कोई जुर्म किया है तो उसको इंडिया में सज़ा मिलेगी, विच इज़ जो इंडियन एनैक्टमेंट के हिसाब से एक जुर्म है. ठीक है, इसकी सेक्शन लैंग्वेज है कि
any person liable by any Indian law to be tried for an offense committed beyond India. अगर उसने इंडिया के बाहर ऑफेंस किया है लेकिन वो इंडियन सिटीजन है लेकिन इंडिया के बाहर ऑफेंस किया है, शैल बी डेल्ट विथ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, उसको ये कोड एप्लीकेबल है फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैज़ बीन कमिटेड विथ इंडिया. और सेक्शन 188 of the Code of Criminal Procedure also provides that when an offense is committed outside India by a citizen of India, whether on the high seas or elsewhere, or by a person not being such citizen on any ship or aircraft registered in India, such offense shall be inquired into and tried in India with previous सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इस हिसाब से इसको कहाँ पे प्रोसिक्यूशन हो जाएगी, इसकी प्रोसिक्यूशन हो जाएगी कहाँ पे, प्रोसिक्यूटेड इन मुंबई. सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ IPC हार्बरिंग हैज बीन डिफाइंड. हार्बरिंग किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है. तो हार्बरिंग का जो है, हार्बरिंग का ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज हियर सेक्शन 52A, जहाँ पे मैंने बोला है कि जब उसको असिस्टेंस मिलेगी, सप्लाई फूड होगा, इम्यूनिशन होगा, आर्म्स मिलेगी, उसको हार्बरिंग बोलते हैं. दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 52A. ये ऑप्शंस भी देख लेते हैं. सेक्शन 60 जो है ये डील करता है सेंटेंस में भी होल्ड या पार्टली रिगरस सिंपल. ये कोर्ट जब किसी को सेंटेंस देगा तो वो ही डिसाइड करेगा इसको रिगरस मिलनी चाहिए, सिंपल मिलनी चाहिए. वो सेक्शन 60. सो सेक्शन 60 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. सेक्शन 52 में ही हार्बरिंग डिफाइन किया गया है. सेक्शन 212, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना. सेक्शन 212 जो है यह हार्बरिंग ऑफेंडर डिफाइन करता है, ना कि हार्बरिंग. हार्बरिंग सेक्शन 52A में डिफाइंड है और सेक्शन 212 में हार्बरिंग ऑफेंडर के बारे में बोलता है. ऑल ऑफ द अबव, नो, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. इट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. अगर ज़्यादा और डिस्कस हम करने लगेंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा. Hope it would help you in your exams. There are other MCQs also. I will discuss them on other day. Hope you will like it, enjoy it. If you like my lecture, yeah, like these MCQs for any reason, hit like button, subscribe my channel, and don't forget to share with others. Have a nice day. Allah Hafiz.